ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨ। ਸਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾफ़ी चर्चा चली, बयानबाजी भी हुई तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ चीज़ निकल के आई कि बिजली जो माफ़ी कीता सी बिजली बिल माफ़ी वो अज फाइनली अनाउंस करता है। वो फिर भी अनाउंसमेंट ही है हजे तक, क्योंकि PSPCL की कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई। देखो जी, सरकार ने किया है, आई एम श्योर इट विल हैपन। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬਈ ਹਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਟੀ ਗਿਟਟੀ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਤਕੀ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਪੋਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਵਰਟੀਕਲਸ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ, विच इज़ इन अ सेंस यह पार्ट तो फेयर है। बट एक कोई फ्री बिजली देना इज़ नॉट द राइट अप्रोच। ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਫਲੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਾ 9500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਪਏਗਾ ਜੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੂਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 9500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫॉर वन ਰੀਜ਼ਨ ਔਰ ਅਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹਦਾ ਮੇਜਰ ਬਜਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਡੈਟ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਜੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾਈ ਆ ਜੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਅਗੇਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਪੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਹਜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ICU 'ਚ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ICU 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਸਨਲੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਾਈਟ ਅਪਰੋਚ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਵੀ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਅਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵੀਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਟਾਈਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਚਾਂ ਕਾਰਨ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਓ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਚੁੱਕੋ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਸਲ ਉਗਦੀ ਪਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਇਮੈਜਨਰੀ ਹੱਕ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਮੈਜਨਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਭਾਵੇਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਰ ਲੈਗੇਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੈਗੇਸੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਬੈਟਰ ਬਜਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੈਟਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਈ ਨਾਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰੋ। ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਿਲ ਇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਕਲਚਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਸਡਨਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ? ਰਾਈਟ। ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਮੈਂਡੇਟ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਬਟ ਦੇ ਵਿਲ ਡੂ ਅ ਬੈਟਰ ਜੌਬ ਜੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਫੰਡਡ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਈਟ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ EMPLOYEES ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਫॉर ਫੰਡਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਫੰਡਸ ਕੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਸੈਟ ਸਾਡਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਜਟ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ R&D ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਉੱਥੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਪਪੂਲਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫੇਲਿਅਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਫੇਲਿਅਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲਿਅਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਟਰ ਰਿਸਰਚ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਫੰਡਸ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਉਹ ਫੇਲਿਅਰ ਛਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੈਗੇਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਐਸ ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਫ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਇਟ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਦਿਲਵਾ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਕਿ certain percentage of Punjabi students might be consider ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਿਲੇ, ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ certain percentage ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖੋ। certain ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਬਜਟਸ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ ਹੋਵੇ। that is how you maintain your culture ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਰਡਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਹੈ? ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਜੀ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਅੱਜ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਅਸਾਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਦੇ ਜੁੜੇ। ਹੁਣ BJP ਦਾ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੀਪ ਰੂਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਵਿਊ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਐਵਰੀਵਨ ਨਿਊ ਕਿ ਉਹ BJP ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਸਨ ਤੇ BJP ਦੀ ਹੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਾਰਮਲੀ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ BJP 'ਚ ਸਨ। ਸਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜੋ MP ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ MP ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ BJP ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਹਸਬੈਂਡ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਈਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕੈਪਟਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਗੇਨ ਅਟਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਲਈ, ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੈਗੇਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ BJP ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਮਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ET ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ BJP ਦਾ ਜਰਨਲੀ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਥਿੰਗ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰ ਆਪਣੇ experience ਤੇ capability based ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। just because you are someone's wife or daughter it does not give you preferential access। ਇਸ mindset ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਵਾਈਫ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਤੇ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦੈਟ ਬੇਸਿਕਲੀ BJP ਨੇ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਗੇਨ ਅਟਕਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂਰ ਵਾਈਫ ਬੀ ਇਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਵਿਚ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੇਰ ਆਰ ਟੂ ਮੈਨੀ ਸਲਿਪਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਕੱਪ ਐਂਡ ਲਿਪਸ ਜੀ। ਆਉਣ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਲਾਨ ਬਣ जाए। सो लेट इट हैपन, उस तो बाद आप इस उत्ते डिस्कशन कर सकते हैं। सर हम बात कर रहे थे पंजाब की, अब भारत की बात करें तो भारत ने, इसरो ने 2 स्टार्टअप्स के सैटेलाइट लॉन्च किए हैं जो स्पेस में, वो एक बड़ी कामयाबी है। प्रधानमंत्री ने भी शुभकामनाएं दी हैं। देखो स्पेस फ्यूचर है। अगर आप आज बात करें इलॉन मस्क की, इस वक्त यूक्रेन की जो लड़ाई रशिया से चल रही है
उसमें यूक्रेन का सारा कम्युनिकेशन मॉड्यूल है वो स्पेस सैटेलाइट्स के थ्रू उनका जो स्टारलिंक एंटरप्राइज है उसने संभाली हुई है जी। और उसने काफ़ी मतलब कि एडवांटेज दी, अदरवाइज यूक्रेन के पास ब्लाइंड स्पॉट था जी। और फ्यूचर में जिसके पास स्पेस रिलेटेड कम्युनिकेशन जिस कंट्री के पास अच्छा होगा उसका एज होगा। और हम बड़े फॉर्चुनेट हैं, हमें अपने साइंटिस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन जैसे इसरो हैं जिन्होंने हमें ऐसे साइंटिस्ट दिए जिन्होंने हमें उस सेलेक्ट क्लब में रखा है, वो जो दुनिया के 4-5 टॉप कंट्रीज में रखा है जो स्पेस रेस में सबसे आगे हैं। आज कई डेवलप्ड कंट्रीज, साउथ कोरिया एक डेवलप्ड कंट्री है, रिच कंट्री है, अभी इस साल तो उन्होंने पहला अपना रॉकेट लॉन्च का टेस्ट किया जी। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। और इंडिया प्रोफेशनली, फ्रांस की भी कुछ सैटेलाइट्स छोड़ी गई, उसी में 6 व्हीकल्स को इकट्ठे एक ही रॉकेट से अलग अलग जगह, और इंडिया ने तो 104 सैटेलाइट्स एक बार करने का रिकॉर्ड बनाया है। और इनकी डिफेंस एप्लीकेशंस हैं। अगर आप आज स्पेस की टेक्नोलॉजी के थ्रू आप पूरे अपने बॉर्डर्स पे नज़र रख सकते हो, आप अपने फार्मर्स को बेस्ट इनपुट दे सकते हो, आप वेदर फोरकास्ट बेटर कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर कर सकते हो, lot of mapping of different activities could be done through satellite images. Yes. आप लॉ एंड ऑर्डर को बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हो जी। तो ये ऑफ कोर्स देश की सिक्योरिटी में तो बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। उसके बाद जब रॉकेट बनता है वो आपके इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल वाली सेम टेक्नोलॉजी है, तो इसके डुअल बेनिफिट्स हैं जी। तो इंडिया जब एक रॉकेट कई हजार किलोमीटर तक छोड़ता है तो आप अज्यूम कर सकते हैं इंडिया के पास उतने 1000 किलोमीटर तक मिसाइल छोड़ने की भी टेक्नोलॉजी आ गई है। बिल्कुल। अब ये बोला जा रहा है कि जल्दी बाय इन अनदर 5 to 6 ईयर्स हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी होंगी, राइट, जिनकी ट्रेजेक्टरी और मैन्यूवरेबिलिटी बहुत एडवांस्ड होगी। तो उन मिसाइल्स को अगर इतना मैन्यूवर बनाना है तो आपके पास खूब सारी सैटेलाइट चाहिए जो हर जगह पे हर टाइम पे नज़र रख पाएँ जी। और आपके दुश्मन देश क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर नज़र रखने के लिए। और इससे भारत अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी से अपने आसपास के देश जो भी इतने डेवलप्ड नहीं है या छोटे देश हैं जो R&D में इतना पैसा नहीं लगा सकते, उनकी इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर सकता है, उनके कम्युनिकेशन को भी मैनेज कर सकता है। हमारी सैटेलाइट से आज हमारे नेबरिंग सार्क कंट्रीज और आसपास के एशियन कंट्रीज का काफ़ी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर और काफ़ी इंफॉर्मेशन वो ऑलरेडी हमसे लेना शुरू हो चुके हैं। इससे हमारा प्रभुत्व, राइट, हमारी जो लाइजनिंग है आसपास की कंट्रीज के साथ और बेटर तरीके से होती है। जो चाइना एक अग्रेसिव पोस्चरिंग करके बैठा हुआ है हमारे नेबरहुड में, उनके ऊपर भी एक तरह से एक रोक लगती है। तो इट्स अ वंडरफुल थिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी स्टार्टअप्स के सैटेलाइट गए जी। अब इलॉन मस्क एक प्राइवेट एंटरप्राइज है और उनके कई 100 सैटेलाइट्स हैं। अब धीरे धीरे इंडियन कंपनीज, कुछ बड़ी कंपनीज के तो पहले ही हैं जैसे जो टेलीकॉम में है, जब इंडियन कंपनीज के पास अपनी सैटेलाइट्स हम लॉन्च कर पाएंगे तो अल्टीमेटली हम अपने क्लाइंट्स को बेटर सर्विस दे पाएंगे। तो ये मेरे को लगता है कि एक बहुत ही प्राउड फील करने वाली बात है कि आज इंडिया की स्टार्टअप्स अपनी सैटेलाइट छोड़ रही हैं। बिल्कुल सर। और होपफुली ऑफ कोर्स इसरो का कोई मुकाबला नहीं है, हमने तो मार्स तक पहले ही मिशन में सक्सेसफुल, इतने कम रेट पे, उतने पे तो पर किलोमीटर में ऑटो नहीं आता जितने में इसरो मार्स तक पहुंच गया। बिल्कुल। अगर आप आज ऑटो लेने जाओ पर किलोमीटर आपको ज़्यादा महंगा पड़ता है। इसरो ने जितने रुपए पर किलोमीटर में 7-8 रुपए पर किलोमीटर में आपको मार्स पहुंचा दिया। बिल्कुल। और ये जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये जो हमारी एक इकोनॉमिकली वाइज जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, और धीरे धीरे मैं चाहता हूँ कि हमारे इंडिया के स्टार्टअप्स भी रॉकेट टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ में और आगे आएँ, और हमें कि हमारी टेक्नोलॉजी शुड बी एबल टू हेल्प। It is not about revenue. Our technology should be able to help our neighboring countries. अभी तेजास को इजिप्ट खरीद रहा है, मलेशिया शायद खरीदे, अभी वो तो खैर बात चल रही है। तो अगर हम धीरे धीरे अपने आप को लोगों के एक सार्थक पार्टनर बन पाएंगे, पॉजिटिव पार्टनर्स बन पाएंगे, तो मेरे को लगता है कि वी ऑल शुड फील प्राइड इन सच अचीवमेंट्स। इंटरनेशनल मार्केट में हमारी वैल्यू बढ़ रही है। एब्सोल्युटली। बिल्कुल सर। एक पेट्रोलियम के टैक्सेस में थोड़ा चेंज हुआ है और उसके साथ ही गोल्ड के प्राइसेस में भी। देखो, पेट्रोलियम के प्राइसेस में जो चेंज हुआ दैट इज फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन। जी। बेसिकली होता गया कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कई प्राइवेट कंपनीज का भी, पब्लिक कंपनीज का भी, फॉर प्रोसेसिंग ऑफ क्रूड ऑयल। जी। अब होता गया कि क्रूड ऑयल आता है, वो प्रोसेस होता है, फिर बाहर चला जाता है। अब अब बेसिकली इससे क्या होगा कि इसके अंदर मैंडेट है कि 50% आपको जो आप करोगे बेसिकली ऑयल प्रोड्यूस, प्रोसेस करोगे क्रूड ऑयल, वो डोमेस्टिक सप्लाई होना चाहिए। जी। सेकेंडली जो आप एक्सपोर्ट करोगे, और वो भी बड़े प्लांट्स के ऊपर है, एक एडिशनल सेस है। जी। जब वो एडिशनल सेस लगेगा भारत के लिए और रेवेन्यू बनेगा। देखो, इस वक्त ग्लोबली हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि समहाउ बाय लक, बाय पॉलिसीज, समहाउ
इंडिया ये जो इन्फ्लेशन और ये जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो सप्लाई चेन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इंडिया उसको बेटर तरीके से फेस कर पा रहा है जी। उसका एक रीज़न रहा है हमारी डोमेस्टिक इनोवेशन और डोमेस्टिक डिमांड। तो मेरे को ये लगता है कि ऑयल, एनर्जी एक हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल है जी। अगर हम समहाउ इस बिल के ऊपर अपनी फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग कर पाए, जब बाहर नहीं जाएगा, नहीं तो दोबारा बुलाना पड़ेगा, तो आपकी फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग्स होती हैं। फिर जो बाहर जाने को वो और डिसइंसेंटिवाइज करना चाहते हैं। अगर आप पर बैरल सर्टेन डॉलर का सेस लगा दोगे, यहाँ तो रेवेन्यू आएगा जो आपको अगेन एडजस्ट करेगा, या बाहर कम जाएगा ऑयल आपका प्रोसेस होने के बाद। तो मेरे को ये लगता है कि इसका ऑफ कोर्स डोमेस्टिक ऑयल प्राइसेस पे कोई इंपैक्ट नहीं है, वो पॉलिसीज अलग तरीके से है। दिस इज फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसेसर्स, दिस इज नॉट रिलेटेड टू रिटेल, जो हमें डेली बेसिस पे जो चीज़ें इंपैक्ट करती हैं डायरेक्टली, उसका इस पर कोई इंपैक्ट नहीं है। ऑयल बेसिक। दूसरी बात थी गोल्ड, आप बोल रहे थे। अब गोल्ड जब इंडिया में इंपोर्ट होता है तो फॉरेन करेंसी जाती है, फॉरेन करेंसी की जब डिमांड बढ़ती है तो रुपी डीवैल्यू होता है। ऑलरेडी रुपी एक अच्छे खासे पेस पे डीवैल्यू हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इंपोर्ट के ऊपर उसके ड्यूटी लगाई है ताकि लोग गोल्ड इंपोर्ट ना करें, क्योंकि गोल्ड का इंपोर्ट नेसेसरी नहीं है, इट्स अ लग्जरी थिंग। तो उसके कारण अगर हम अपनी फॉरेन एक्सचेंज को स्पेंड करते हैं तो एक सिंपल सी सप्लाई डिमांड की गेम है। अगर डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी तो डॉलर महंगा होगा, तो इंडिया में लोग डॉलर रुपी देके खरीदेंगे, तो डॉलर ज्यादा चाहिए, रुपी तो उतना ही है जी। और तो उसकी वजह से अब आपने हर चीज को इंपोर्ट करने के लिए डॉलर देने पड़ेंगे, मतलब रुपए से डॉलर खरीद रहे हैं आप। तो अगर आप उसको रोकते हैं और डॉलर की डिमांड कम होती है तो आपके रुपी की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। सो ये एक स्टेप है जो रुपी की जो डीवैल्यूएशन हो रही है, अननेसेसरी चीजें जो इंपोर्ट हो रही हैं, उसको कंट्रोल करेगा। बिल्कुल सर, कुछ दिनों से देश में माहौल ठीक नहीं है कई जगह पर। नुपुर शर्मा का जो कमेंट था उस पर चर्चा होती रही, उस पर बहस छिड़ती रही। उदयपुर में जो कांड हुआ, जो कत्ल कांड हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाई है, उनको जिम्मेदार ठहराया है अपने कमेंट्स के लिए। देखो, आई पर्सनली डोंट एग्री विद द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि हाउ समवन मेकिंग अ कमेंट जस्टिफाइज किलिंग। ये तो आप मतलब कि इनडायरेक्टली आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर आपने कुछ भी बोला दूसरा बंदा कत्ल भी कर सकता है। मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता सुप्रीम कोर्ट की एग्जैक्ट वर्डिंग्स क्या है, बिकॉज काफी बार जो रिपोर्टिंग होती है और उसमें गैप होता है। पीपल हैव फ्रीडम टू स्पीच एंड फ्रीडम टू ऑफेंड जी, राइट। अगर आप किसी को फ्रीडम टू ऑफेंड या अपना पॉइंट रखने, तो बदलाव कैसे आएगा? हम ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा का ठीक है बयान बेसिकली अनफॉर्चुनेट था और नहीं बोलना चाहिए था जी, पर उसके कारण अगर पत्थरबाजी होती है जी, उसके कारण अगर किसी आदमी का सिर काट दिया जाता है तो नुपुर शर्मा उसके लिए जिम्मेदार नहीं है जी। वही लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने सिर काटा है, और वो ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार हैं जिन्होंने उनका माइंड वॉश किया है जी। आज हमारी सरकार को ऑफ कोर्स इसको एक्ट ऑफ टेररिज्म ट्रीट किया जा रहा है। वो लोग जिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े उन सब पे बैन लगना चाहिए जी। मैं पर्सनली ऑफ कोर्स व्हाटएवर सुप्रीम कोर्ट सेज, चीजें तो उसी हिसाब से चलेंगी, बट द पॉइंट इज कि इट इज क्वाइट, मैं काफी हैरान हुआ ये बात सुनकर कि कैसे किसी के कमेंट के कारण, आप जो जिस बंदे ने कमेंट दिया उसके कारण किसी का सिर, आपने यही बोला ना कि हम आपके पीर की सर्टेन क्वालिटीज या आपके पैगंबर की सर्टेन क्वालिटीज हम नहीं मानते या हम उनको नेगेटिव मानते हैं, उसके कारण अगर कुछ लोग पथरावबाजी करते हैं या किसी का गला काट देते हैं, तो ये उस बंदे के कमेंट्स के साथ उसकी प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है जी। उसका आप उनके ऊपर मानहानि का दावा करिए, आप उनके ऊपर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अगर कोई केस बनता है तो वो भी बनाइए जी, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि उसके कारण ये तो आप देख लीजिएगा, कल से हर जगह पे जो भी जस्टिफाई करना चाहेगा वायलेंस को, वो सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेगा। बिल्कुल, और किसी भी कमेंट से, किसी भी नेगेटिव बात करने से भी मुझे लगता है किसी को लाइसेंस नहीं मिल जाना चाहिए किसी को कत्ल करने का। हरगिज नहीं। आप अपने देश देखो, मैं इसलिए हम उस दिन भी बात कर रहे थे, नेशनलिज्म इज इंपॉर्टेंट। हम अपने देश के लोगों को पहले अपना सपने समझें रादर देन जस्ट रिलीजन। नेशनैलिटी शुड कम अबव रिलीजन। मैं सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ, ये मेरे मन में जब आएगा तो मेरे को लगता है कि देश एक बेटर एनवायरनमेंट दे पाएगा। जापान ने कुछ ही टाइम में, जब वो बिल्कुल नेस्ता नाबूद हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, एक नेशनलिस्ट माइंडसेट के साथ अपने देश को एक बिल्कुल खत्म देश से, जो यूक्रेन का आज हाल इमेजिन कर रहे हैं आप, उससे भी बुरा, वहां पे एटम बम गिरे थे जी, उससे भी बुरा हाल था। उससे 20-25 सालों में एक डेवलप्ड कंट्री बनना, कितनी देर तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बने रहना, आज भी तीसरे नंबर पे जी।
तो ये होता है जब आप अपने देश को प्यार करते हैं और जब आप इकट्ठे कोलेक्टिवली ठान लेते हैं। आज अगर हम हिंदुस्तान में एक दूसरे को अपना ही नहीं मानेंगे तो हम अपने देश को आगे कैसे लेके जा पाएंगे। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो बाइडेन की पावर्स को कुछ कम किया है क्लाइमेट चेंज के इश्यूज पे। देखो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है, वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है काफ़ी रिग्रेसिव कुछ स्टेप्स ले रहा है पिछले कुछ टाइम से, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन हुई है ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मर्जी के कुछ माइंडसेट वाले वहाँ पे जजेस अपॉइंट किए, जो जितने भी प्रोग्रेसिव स्टेप्स हैं। आप कह रहे हो कि भाई अमेरिका के ऊपर जो इन्वायरमेंटल चेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होनी चाहिए, आप 5% पॉपुलेशन और 25% रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो। अगर वेस्टर्न कंट्रीज ट्रूली फेयर होना चाहती हैं तो पर कैपिटा बेसिस पे एनर्जी कंजम्पशन होनी चाहिए। अगर भारत का भी हर बाशिंदा, दुनिया का हर बाशिंदा अमेरिका के बाशिंदे जितनी पर ईयर एनर्जी कंज्यूम करे तो आपको 5 अर्थ के बराबर रिसोर्सेज चाहिए। तो क्या आज की डेट में हमें ये पुश नहीं करना चाहिए वेस्टर्न कंट्रीज को, यूरोपियन कंट्रीज को, वो अपने रूम, अपने हर घर में हीटर, ये सारी चीज़ों के बिना दे यू कंज्यूम लॉट ऑफ अननेसेसरी एनर्जी, उनको भी तो सेक्रीफाइस देने पड़ेंगे। वो सेक्रीफाइस की डिमांड हमेशा डेवलपिंग कंट्रीज से, इंडिया, अदर एशियन कंट्रीज से मांग कर रहे हैं, और जबकि खुद वो पूरे कंफर्ट में रहना चाहते हैं। ये उनका एक दोगलापन है। वो रशिया से ऑयल हमें खरीदने से मना करेंगे पर खुद वही ऑयल और एनर्जी यूज करते रहेंगे। वो हमें वॉर, अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए वॉर पे जाने से या कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने से रोकेंगे, पर खुद जहां पे कोई चीज नहीं भी है, इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेसी पूरे के पूरे देश बर्बाद कर देंगे। वो आज भी वही कर रहे हैं कि भाई एनर्जी कंजम्पशन, क्योंकि जस्ट बिकॉज इट इज कॉस्टली, वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली नहीं होना चाहते हैं। तो आज उन्होंने ये अज्यूम कर रखा है कि समहाउ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है टुवर्ड्स पोल्यूटिंग दिस एंटायर वर्ल्ड। अगर फेयर कैलकुलेशन करूं, आज उनकी ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग तो चाइना में हो रही है या इंडिया में हो रही है या एशियन कंट्रीज में हो रही है, उसको वो इंडियन या चाइनीज कार्बन फुटप्रिंट में मानते हैं, जबकि आपके लिए सारा इक्विपमेंट तो यहाँ पे बन रहा है। आपने अपनी सारी डर्टी इंडस्ट्री तो हमारी तरफ भेज रखी है और आप वहां पे सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे पैसे बना रहे हैं। तो अगर वो आज अपनी डेवलपमेंट खुद करनी शुरू कर दें, अपनी फैक्ट्रियां खुद लगा लें, तो अपने आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। सर, इसके साथ ही हांगकांग का यूथ अब ये सोच रहा है कि उनको इस शहर में रहना है या नहीं रहना। देखो, हांगकांग का यूथ बिल्कुल सही सोच रहा है। जब ये देश ट्रांसफर हुआ 1997 में, तो उस टाइम पे उन लोगों का भविष्य तय हो गया जो अभी पैदा हुए थे। पहले हांगकांग 100 साल के लिए वाज गिवन टू लीज टू यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन को दिया गया था, और 1997 में उसको वापस चाइना को हैंडओवर होना था और मिक्स सिस्टम के साथ अगले कुछ सालों तक वो चलना था। पर जो चाइनीज गवर्नमेंट का डिक्टेटोरियल माइंडसेट है, उन्होंने वहां की सारी फ्रीडम्स और सारे लोगों की चॉइसेस लेनी बंद कर दी। अब जो 97 से पहले लोग पैदा हुए हैं, उनके पास तो ब्रिटिश ओवरसीज ब्रिटिश नेशनलिटी वाला पासपोर्ट अवेलेबल है, वो जब मर्जी मूव कर सकते हैं। पर जो 97 के बाद पैदा हुए हैं, वो यहाँ तो अपनी फैमिली कनेक्शन से या किसी और तरीके से ही जा सकते हैं। आज हांगकांग के अंदर ऐसे ऐसे लॉ इंप्लीमेंट कर दिए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको अगर इलेक्शन में खड़ा होना है तो आपको चाइना को प्रूव करना पड़ेगा कि आप देशभक्त हैं, तो आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। अब आप किसी की देशभक्ति किस यंत्र से नापोगे? ये टेम्परेचर तो है नहीं कि मैंने आपके मुंह में थर्मामीटर लगाया और मेरे को पता चल गया जी आप इतने बड़े देशभक्त हो। तो ये इस तरह के लॉ से वो किसी को भी रिजेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो उनके ही जो नुमाइंदे हैं वही वहां पे लीडरशिप करेंगे। एक उन्होंने नई पॉलिसी बना दी कि अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, देश पैट्रियोटिज्म या एंटी नेशनल कोई भी केस बन रहा है, तो वो आपको एक्स्ट्राडाइट कर सकते हैं चाइना में। अब चाइना में हांगकांग के बंदे को जिसको गवर्नमेंट उठा के लेके जा रही है, इंसाफ मिलने के क्या चांसेस हैं? कोई चांसेस। तो बेसिकली वहां के यूथ को अब अपना फ्यूचर बहुत ही डेंजर में, बिना किसी फ्रीडम के नजर आ रहा है। आज हम हिंदुस्तान में बैठ के जिन चीजों को अपना राइट समझते हैं, सही गलत हम कुछ भी बोल सकते हैं, आज वो फ्रीडम हांगकांग के लोगों के पास नहीं है। मेरे को लगता है ये हिंदुस्तान के यूथ के लिए लेसन है। हम पहले भी बात कर रहे थे कि अननेसेसरी हमारे दिमाग में डाला जा रहा है कि एज इफ हमारे हक छीने जा रहे हैं, इमेजिनरी हक बनाए जा रहे हैं और इमेजिनरी तरीके से उनको छीना जा रहा है। ऐसे नेता अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं हमारे डरों पे काम करके। ये हमारे लिए एग्जांपल्स हैं कि वी हैव सो मच ऑफ लिबर्टी, वी शुड रिस्पेक्ट इट, बिकॉज लिबर्टी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। तो हम इसको रिस्पेक्ट करें, अपने देश की डेमोक्रेसी में प्राउड फील करें और
इसकी ग्रोथ में काम करें। इस डेमोक्रेसी और इस फ्रीडम का ये एडवांटेज नहीं है कि जहां मर्जी बसें जला दी, जहां मर्जी पथराव कर दिया, ये इस फ्रीडम का मतलब नहीं है। जी शुक्रिया सर मीनिंगफुल डिस्कशन के लिए। इस तरह की ज़रूरी जानकारी के लिए देखते रहिए पंजाब टुडे।